Good morning, everyone. We are again back to chapter 8. We are doing exercise 8.2 where we are using your midpoint theorem. Your midpoint theorem is the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of the third side. Yesterday we did two of its questions and today we are going to start with third question. So let me read the third question. Your question is ABCD is a rectangle. Again, P, Q, R, and S are the midpoints of AB, BC, CD, and DA. And you have to show that quadrilateral PQRS will be a rhombus. This is the reverse question of the question number 2, which we did yesterday. Yesterday, we did that when we join the midpoints of a rhombus, we will get a rectangle. And today, we are saying if we join the midpoints of a rectangle, we will get a rhombus. So, we have to draw the rectangle and we have to join its midpoints. This is रोम्बस नहीं बनाएंगे मैम, अंजय रोम्बस नहीं बनाएंगे, आपने रोम्बस PQRS को रोम्बस प्रूव करना है. ABCD रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है. तो आप पहले ABCD रेक्टेंगल तो बनाओगे. जब आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली रोम्बस ही बनेगा. बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि जब भी हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो रोम्बस ही बनेगा, राइट. अगर आपने रेक्टेंगल पे बनाया है और आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रोम्बस ही आएगा, ठीक है. अब रोम्बस प्रूव करना है मींस रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड all sides equal. So we have to show that PQRS is a rhombus means all of its four sides are equal to each other. We have to show PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS. और ये आपको पहले बताया हुआ है that whenever we have to prove any quadrilateral to be a rhombus, we just prove the adjacent sides to be the rhombus. हम सिर्फ इसकी ये दो sides को prove कर देंगे to be equal. हम इसको इन दोनों को equal prove करेंगे and then we will say similarly ये दोनों भी equal हो गई, ये दोनों भी equal हो गई, ये दोनों भी equal हो गई and all four sides are equal, then it will be a rhombus. ठीक है. तो अब आपका काम है इन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना. इन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो कौन सी दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेगी बताओ. RSP and triangle RQP. Yes, you will. हाँ, RSQP. मैम RSQP. RSQ. मैम RSD RQC. मैम RSD RQC. Yeah, ma'am. I said I am taking these two sides. तो ये दो sides हमारी एक तो इस triangle में आ रही है. SAP QBP. Yes, we will take triangle SAP and triangle QBP. अब इन दोनों triangles की मुझे बताना नहीं है. You try to do its congruency. आप करो इसकी congruency prove हो जाए तो yes or no बोलना. बताना मत मुझे कि आपने कैसे की है. Till then, I am writing your given and to prove. मैम प्रूव. मैम प्रूव. मैम प्रूव्ड है. ओके. मैम प्रूव है. ओके. बाकी भी तो आवाजें आए. ये लिख लीजिए. Ma'am, what is the meaning of a rectangle ABCD? Is a rectangle PQRS are the midpoints? This is what given to you. What is given to you? You are given a rectangle ABCD. We are writing given. Given में आपको क्या given है? एक rectangle ABCD given. Oh sorry, ABC given a rectangle ABCD and P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. And we have to prove. क्या prove करना है? PQRS is a rhombus. ठीक है. And in the proof, we are saying that we are taking two triangles in triangle SAP and triangle
बी पी। हाँ जी, अब बताओ आपने कैसे की है कॉन्ग्रुएंसी? मैम AP is equal to एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री। AP is equal to PB Angle because एंगल ए and एंड एंगल बी 90 डिग्री। okay, because P is midpoint. मैम Angle A A is equal to BQ. AS. AS is equal to BQ. So yes, Because ma'am. S is the midpoint of A and मैम B एस is मैम एस और half क्यू of AD will be equal to half. मिड पॉइंट है। 1 by 1 आप ना हैंड रेज किया करो, मैं बोलूंगी कि किसने बोलना है। हाँ जी बताओ हाउ वी आर सेइंग दैट AS is equal to BQ। विचित्र आप बोलो। बोलो And विचित्र। as AD is equal to BC, so half be equal to half of BC. AD is equal to BC, that implies half of AD is equal to half of BC। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है तो इसका हाफ AS इसके हाफ BQ के इक्वल होगा। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, AS is equal to BQ, which congruency? रोशनी। Yes, ma'am. Which congruency? Ma'am, SAS. So what to write? That SP is equal to PQ by CPCT. Anybody implies else that- continue the question? मैम टू प्रूफ में हम ये नहीं लिख सकते कि रोम्बस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यू कैन राइट इन द टू प्रूव आल्सो दैट PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूं? Ma'am, this implies that SP Similarly, equals to PQ. yes, similarly PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP। that implies PQ RS is a rhombus। ठीक है, ओके लेट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको क्लियर नहीं है वो एक बारी हैंड रेज कर ले। मैम इसके अंदर नहीं बताना कि बाकियों की भी करके नहीं दिखानी, जैसे SAP DRC DRS। नहीं बेटा, सिमिलर स्टेप्स पर है तो आपको वो सारा दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये किया है बिल्कुल ऑन द सिमिलर स्टेप्स वी हैव दिस। ठीक है, इसमें भी साइड एंगल साइड लगेगी, फिर ये लोगे उसमें भी सेम लगेगी, तो आपको बार बार वही चीज रिपीट करना नहीं होता है। ठीक है सिमरन, नॉट क्लियर? यस मैम, दोबारा समझा दो। बेटा यू आर गिवन रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, इस रेक्टेंगल के आपको मिड पॉइंट्स गिवन है PQR एंड S। दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द कि जब भी हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा रोम्बस बनता है। मींस वी हैव टू शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। So we have to show that PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP। आपने इसके चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए if we prove only two sides to be equal, हम इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे इक्वल होंगे? जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अगर आप इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हो देन बाय CPCT द टू साइड्स विल बी इक्वल। और जैसे आपकी ये इक्वल आ गई फिर हम कह देंगे अगर ये इक्वल है तो सिमिलरली अगर हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे तो ये दो साइड्स इक्वल आ जाएंगे। जैसे ये दो इक्वल आई हैं वैसे ही ये भी इक्वल आ जाएंगे एंड ऑन द सिमिलर स्टेप्स दीस टू विल आल्सो बी इक्वल। तो आपने ये सारे नहीं करने, यू जस्ट हैव टू प्रूव एनी टू साइड्स, एनी टू एडजेसेंट साइड्स टू बी इक्वल। ठीक है, उसके लिए हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं। नाउ बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके मिड पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। अब इस लाइन का ये मिड पॉइंट था,
मिड पॉइंट था तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। और थर्ड है आपके पास, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, सो एंगल ए, एंगल बी, सी एंड डी, दे ऑल विल बी 90 डिग्री। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे भी नैन्सी। सो वी आर सेइंग दैट दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। कॉन्ग्रुएंट करने के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो साइड्स आपकी सीपी सीटी से इक्वल आ गई, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आ गई हैं, वी हैव रिटन एसपी इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ जैसे ये इक्वल आई है, वी आर सेइंग सिमिलरली पी क्यू क्यू आर के इक्वल आ जाएगी, क्यू आर आर एस के इक्वल आ जाएगी, आर एस एस पी के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। नैन्सी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, बट अगर ये पूछेंगे अगर चारों साइड्स इक्वल है तो 100% आप गारंटी के साथ क्या कह सकते हो कि वो क्या होगा। आप यही कह सकते हो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है तो वो 100% रोम्बस तो होगा ही होगा, स्क्वायर हो या ना हो। स्क्वायर के लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि वो 90 डिग्री एंगल है उसके सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके चारों एंगल्स 90 हम नहीं प्रूव कर सकते, वो हर केस में नहीं हो सकता कि 90 डिग्री एंगल्स आए। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इस रेक्टेंगल को और थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ, अगर मैं इस रेक्टेंगल को इस तरह से बना देती हूँ, यहाँ पे तो चलो आपको नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल जैसा है, ठीक है। यहाँ से इसका मिड पॉइंट लिया, इसका लिया, इसका लिया और इसका लिया। व्हेन यू विल जॉइन दीज पॉइंट्स तो आपको ये एंगल क्या 90 डिग्री का नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। बट कैन यू सी दैट ऑल फोर साइड्स आर एक्सटेंडेड इन देयर लेंथ्स। सो ये चारों साइड्स आपकी, चाहे आप इसे जैसे मर्जी खींच लो, ये चारों साइड्स आपकी क्या रहेंगी, दे विल ऑलवेज रिमेन इक्वल, ठीक है। अब क्लियर हो गया? Now we are coming to the next question. Okay, so now we are starting with question number 4. Your fourth question is you're given a trapezium AB parallel. एग्जांपल्स करा दूं? Examples बोलो, बोलो कौन सा एग्जाम्पल है? Can anybody read the statement of the example? मैम 5.1 के एग्जांपल्स। कौन सी 8.1 और 5.1? मैम 8.1। एग्जाम्पल बोलो बेटा, एक बार स्टेटमेंट बता दो। मैं एग्जाम्पल नंबर मम्मी एग्जांपल नंबर 2 बोलो। आई डोंट मैम पहले दो आते हैं, उसके अलावा चार। पहले हाँ ये पढ़ाओ, 2 आते हैं। मैम पहले 2 आते हैं, उसके अलावा जो 4 है वो वाले करा दो। ओके ओके, टेल द क्वेश्चन। बताओ मंगल। वैभव बोल रहे थे, आप बोलो। मैम मुझे ये आता तो है पर ये वाला मैं एक मिनट बोलता हूँ। Send the Can anybody send the Show that the bisectors of angles of a parallelogram from a rectangle. अच्छा ठीक है। Bisectors of angle, opposite angles of parallelogram. आपके पास ये पैरेललोग्राम है A B C D और इसके जो एंगल्स हैं आपने उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आपने इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो अंदर की तरफ हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, इट विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। आपने ये प्रूव करना है कि ये जो अंदर छोटा सा बन रहा है ये आपका रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। अपोजिट साइड इक्वल टू और मैम 190 डिग्री का एंगल। अगर मैं कह दूं Yes, कि ma'am. सारे ही एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर दे तो क्या वो रेक्टेंगल होगा? रेक्टेंगल होगा। यस रेक्टेंगल होगा। सो हियर वी आर प्रूविंग दैट ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री। I have to show that angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, they all are 90 degree. ठीक है, P, Q, R, S, they all are 90 degree. चलिए, now what can we say about angle A and angle D of parallelogram ABCD?
Their sum is 180. Their sum is 180 degree because they are Adjacent. adjacent angles देख लो, co-interior angles देख लो. These are the adjacent angles. ठीक है. If their sum is 180 degree and if I take half of all the three, तो कितना हो जाएगा? It will also be the half of 90 degree. Yes, it will into be 180 90 degree. Now, Yes, ma'am. what is half of angle A? मैं अभी आ रही हूँ इस वाले. TS. ये TS. angle A is divided into two parts. Let me take this angle as 1. Similarly, angle D is divided into two parts, so I am taking this one as angle 2. ठीक है. So what can I write half of angle A? Ma'am, DAS plus angle ADS. Yes. ये P है बेटा. This plus point. ds से. This point is P. S is ऊपर वाला point. Half of angle A is angle 1 plus half of angle D is angle 2 is equal to 90 degree. ठीक है. ये वाला ले रही हूँ मैं angle P. Now, what I can say, angle 1 plus 2 will equal to what? 1 plus 2 is equal to. चलो 1 plus 2 Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. ठीक है. Angle 1 plus 2 plus Angle 3. sum property of triangle. Yes. So what can we say? What will be 1 plus 2 equal to? 9. 90. This will 90. 90 degree. अच्छा चलो ये आपका 1 plus 2 90 है. Put this value here 90. Ma'am plus angle 3. 3 is equal to 180. So what is the 180 value of degree. angle 3? Ma'am 90 degree. 90 Angle 3 degree. will be 90 degree. अगर ये angle Yes, ma'am. 390, सामने वाला अगर ये 390 है तो इसके अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 degree का. 90 vertically opposite angle. Yes. So SQP Ma'am 90 degree. 90 degree because they are vertically opposite angles. Similarly, कौन सा एंगल 90 हो जाएगा? Angle R. Angle SQR. एंगल Ma'am angle S क्या हुआ? SRQ बेटा ये वाला. SQR तो एंगल ही नहीं बना ना. जब आप SQR बोलते हो तो एंगल आपका बीच वाले पॉइंट पर होता है. SQR तो SQR नहीं होगा. इट विल बी SRQ. ठीक है. सो एंगल Ma'am, SRQ R कैसे हुआ? क्या? R कैसे हुआ? SRQ बेटा जैसे ये आपने 90 निकाला है ना वैसे ही हम सेम इधर वाले क्वेश्चंस में कर देंगे. इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों का सम 180. जैसे आपने ये किया A प्लस डी वैसे आप B प्लस सी अगर करो. यहाँ पे B प्लस सी हाफ ऑफ B प्लस सी. यहाँ पर आपका फिर से उधर वाले एंगल्स को अलग से नेम्स दे देंगे. तो जिस स्टेप्स पे सिमिलर स्टेप्स पे जैसे हमने ये 90 निकाला है वैसे ही आपका ये भी 90 आ जाएगा. ठीक है. ये बेटा ये क्वेश्चन है आपका. एग्जाम्पल है 8 पॉइंट. विच एग्जाम्पल? 5. Example 5. 5. Yes. ओके दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ चैप्टर 8. अच्छा ये आपके दो एंगल्स 90 प्रूव हुए. अब तीसरा कैसे करो और बाकी दो कैसे करोगे? हाउ विल यू प्रूव एंगल Q टू बी 90 डिग्री? Triangle DQC लेके. एंगल DQC. ठीक है. आपने Triangle 1 DQC. के लिए इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो. राइट. जैसे आपने ये किया है बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे. अब आपको कौन से दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे? कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? कौन से दो एंगल्स का सम 180 लेना पड़ेगा? 4 Angle plus 4, angle 5, angle Q. Q. Angle DQC. 4 plus 5 plus angle PQR. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर DQC बोलो आप इसको. ठीक है. DQC बोलो या PQR बोलो आपकी एक ही बात है. प्लस और यहाँ से बट 4 plus 5 आपका कितने? Q को 6 नहीं ले सकते. हाँ जी Q को 6 नहीं ले सकते. बिल्कुल Q ले के एंगल. सकते हो. बिल्कुल ले सकते हो बट आपका ये थोड़ी सी फिगर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. और आपका जो बुक में इसका सोल्यूशन दिया हुआ होगा ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसमें सिर्फ एक पार्ट करके बोला है. सिर्फ आपका ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया और लिख दिया कि सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S 90 डिग्री. सो PQRS इज द MSQ आएगा तो Angle. similarly.
हाँ, सिमिलरली करके आप इसको छोड़ सकते हो। सिर्फ आपने एक एंगल 90 प्रूव किया, फिर हम कह देंगे सिमिलरली ऑल अदर एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री एंड द क्वेश्चन पेपर में सिमिलरली करके लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ जी, और भी एग्जांपल है या मुझे कंटिन्यू करना है? मैम है एक मैम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा दो। क्वेश्चन नंबर 1, यू वर नॉट देयर इन द क्लास, सो रहे थे श्रेया आप, हम सब ने किया। I have plans for one more question. One more query is here with me from Roshni. So let me see what is the question. In quadrilateral ABCD, AO and BO are the bisectors. You are given this. This is not a trapezium. This is just a quadrilateral. AO and BO are bisectors. इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. That means we have angle 1 is equal to angle 2 and we have taken the bisector of angle B. That means angle 3 and angle 4 they are equal, and we have to prove that angle AOB is equal to, this is what you have to show, this is equal to half of angle C plus angle D. ठीक है, ये आपने प्रूव करना है. मैम ये 8th क्लास में भी था सम सेम। ओके, चलिए, AOB is equal to half of C plus half of D. चलो करते हैं. A plus B plus C plus D कितना हो जाएगा? 360 degree. This will be 360 डिग्री. बट आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर C और D चाहिए, A और B नहीं चाहिए. ठीक है, और इनका भी क्या चाहिए? हाफ चाहिए, राइट? तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन का हाफ कर देते हैं. जो हमें प्रूव करना होता है ना, उसी से हम आइडिया लेते हैं कि हमने कैसे इस पे चलना है, राइट? तो इसका हम हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ C plus half of D. This will be equal to half of 360. And what is half of 360? 180. 180 डिग्री. ओके, अब मेरे को इतना पार्ट तो चाहिए. ये तो कुछ कुछ मिलता जुलता आ गया. ये यहाँ से हटाना है. तो हाफ ऑफ A किसके इक्वल है? हाफ ऑफ A is 180 minus 180. ओके, ठीक कह रहे हो. हाफ ऑफ A is angle 2, half of B is angle 4 plus half of C plus D. इन दोनों से हाफ बाहर निकाल दिया. दिस इज इक्वल टू 180. 2 plus 4, यहाँ से फिर से अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ, देन आई विल हैव 2 plus 4 plus AOB 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से 2 plus 4 की क्या वैल्यू आ गई? एंगल 2 plus एंगल 4 is equal to 180 minus AOB. ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. 180 माइनस एंगल AOB प्लस हाफ ऑफ C D. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, एंड नाउ इधर वाला 180 ये भी पॉजिटिव है. This 180 is also positive, so the two 180s they will be cancelled. ये आपका इससे cancel होगा. You want this on one side and the remaining terms to be on the other side. So we are shifting this on the other side. Now because this is negative, on the other side it will become positive. ठीक है, so you are on your result which you had to prove. This is equal to angle AOB. This was to be proved. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा. है कोई डाउट तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज आई एम कमिंग टू 4th क्वेश्चन. Okay, question number 4 is you are given a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC. BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. Easy है question. A, B, C, D.
This is a trapezium in which AB and DC they are parallel. देखो यहाँ पर लिखते हैं AB parallel DC. You need to understand this. AB parallel CD क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम इधर डायरेक्शन ले रहे हैं A से B वाली. So here also we are taking the direction from D to C. The two lines are going parallel, right? So you are given AB parallel DC. BD is a diagonal and E is the midpoint. BD is a diagonal. E is the midpoint of AD. This side midpoint is this, and a line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. यहां से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो सामने F पॉइंट पर जाकर कट कर रही है, ठीक है. और आपने प्रूव करना है कि F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. जैसे आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या किया था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी दैट इफ यू हैव अ ट्राइंगल, आप इसका मिड पॉइंट गिवन है, फ्रॉम दिस मिड पॉइंट यू आर गिवन अ लाइन पैरेलल, तो ये सामने जहां जाके स्ट्राइक करेगी दैट पॉइंट विल आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, राइट. अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये कहें कि एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की जो दो साइड्स पैरेलल हैं, उनके पैरेलल आपने एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, तो वो सामने जहां जाके कट करेगी वो भी हमेशा मिड पॉइंट होगा, राइट. तो ये कुछ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जैसा हो गया, बट वो ट्राइंगल में लगती है, आपने ट्रेपीजियम में प्रूव करनी है. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जल्दी से बताओ. हरी अप. व्हाट इज गिवन? Ma'am, ABCD is a trapezium. Ma'am, ABCD is trapezium. ट्रेपीजियम parallel DC. हाँ जी बोलो. AB parallel DC. BD is diagonal. हर्ष वेट. हाँ जी. मैम ये सब कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है मैम? नहीं बेटा, कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे कुछ भी इक्वल गिवन मैम नहीं है. ये सब कॉन्ग्रुएंसी से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी इक्वल गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इतना गिवन है, ये पैरेलल है, मिड पॉइंट है, ठीक है. तो हम इसमें क्या करेंगे, लिसन, ये ट्राइंगल है आपकी, इस ट्राइंगल में आप सिर्फ ट्राइंगल देखोगे, अब आप ट्रेपीजियम नहीं देखोगे. इन दिस ट्राइंगल दिस इज द मिड पॉइंट, ये लाइन इसके पैरेलल, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या हो गया, Midpoint. बस एक हर्ष नहीं बोलना है. Midpoint. By converse of midpoint theorem, this will also be the midpoint. So if I take this point as x, x is the midpoint. अब चले जाओ आप उधर वाली ट्राइंगल पे. In this triangle, अब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो क्या ये इसके पैरेलल होगी? रोशनी बोलो. क्यों होगी? क्यों होगी? Because we have AB parallel to CD. ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो ये इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो गई. So we have this line parallel to this. ठीक है, ये मिड पॉइंट है एक ट्राइंगल की एक साइड का. तो by converse of midpoint theorem, what can we say about F? Midpoint of BC. Midpoint. This is Midpoint what. of BC. बिल्कुल यही आपने प्रूव करना था. मैं जल्दी से लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए. इसमें आपको गिवन में कुछ और भी गिवन है, that EF parallel AB, यहाँ पे लिख लो AB is parallel to CD, so automatically EF will be parallel to CD. Okay, in triangle ABD आप सीधा लिख सकते हो by converse of midpoint theorem. इसमें आपने ये भी नहीं लिखा ना, P is the midpoint and E is midpoint of AD. Now, by converse of midpoint theorem, what can we say? By converse of midpoint theorem, X is midpoint of BD. Now, in triangle BCD, X is midpoint of BD and XF parallel Parallel DC.
So by inverse of midpoint theorem. yes, S is the midpoint of BC. बिल्कुल ठीक. श्रेया आप एक बारी पिछले वाली वीडियो देख लेना, और जो नहीं पहुंची हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे. Hopefully today I will send the videos of last 2 days because there is a problem in school channel. तो जैसे ही एरर रिमूव होता है I will send you the video. हाँ जी, हम आप अपने चैनल पे बना, अपने चैनल पे भेज दो जैसे पहले भेजते थे. अपने चैनल से नहीं देख सकते ना बेटा, स्कूल का चैनल चलता है. We are the part of the school.